So talking about algebraic identities is a very crucial part of algebra, and students are quite confused in this topic क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि ये what is this formula basically. तो इस फॉर्मूले को समझना, इसको आइडेंटिफाई करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन एवरी पेपर यू विल गेट वन क्वेश्चन ऑफ दिस आइडेंटिटी. आपको जो भी पेपर मिले, असेसमेंट हो, मिड ईयर हो, आइडेंटिटीज के बगैर अलजेब्रा कंप्लीट नहीं होती. ठीक है, तो let's just revise the identities. We have three basic identities. We have discussed the third identity, which is the square identity. We will be discussing the first two. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट टू आइडेंटिटीज, पहले थोड़ी सी एक बात ये समझ लेते हैं कि द फर्स्ट एंड द सेकंड आइडेंटिटी हैज टू फॉर्म्स. This form, which has brackets, this is called the factorized form, and the other form, which has no brackets, is called the expanded form. This is called the factorized form क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स आ रहे हैं, और बगैर ब्रैकेट के जो चीज है that is called the expanded form. When we talk about the factorized form, look closely, इसको गौर से देखो. We have two terms inside the bracket. Terms कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है. It can be 3x or 4, it can be x or 4, it can be 2x minus 4, it can be 2x plus 8, it can be anything. लेकिन there should be two terms. There should be two terms. There can be a positive sign in between, there can be a negative sign in between, and there should be a square outside the bracket. ये factorized form की identification है, recognition है. You have to identify this. आपको पहचानना पड़ता है कि what is this basically, क्या ये factorized form है या ये expanded form है, because the question comes in both the types. कहीं वो आपको factorized form देगा and you will be asked to convert this into the expanded form, और कहीं वो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म देगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू कन्वर्ट इट इनटू द फैक्टराइज्ड फॉर्म. तो हमें दोनों काम आने चाहिए. तो फर्स्ट, दिस फॉर्म दैट हैज ब्रैकेट्स, इट्स कॉल्ड द फैक्टराइज्ड फॉर्म, एंड दिस फॉर्म दैट हैज नो ब्रैकेट्स इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म. फैक्टराइज्ड फॉर्म हैज ओनली टू टर्म्स separated by a positive sign or a negative sign, and there is a whole square outside the bracket. When it comes to the expanded form has three terms. काफी सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं कि जब वो इसको ओपन करते हैं तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं, सेकंड टर्म का स्क्वायर लेके अपना आंसर लिख देते हैं. दे टोटली फॉरगेट द मिडिल टर्म, जिसकी वजह से उनका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है. बिकॉज दीज आर आइडेंटिटीज, दीज आर फॉर्मूलाज, इनका एक पैटर्न है. ठीक है, ये रैंडमली ऐसे नहीं हो गया कि ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लिया, सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लिया. देयर इज अनदर टर्म इन द एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल, तो वो भी तुम्हें याद रखनी है. अब इसको याद करने का तरीका क्या है, मैं इसको इस तरह याद कराता हूँ. a प्लस बी होल स्क्वायर is equals to square of the first term. I call it the first term. ठीक है, this is the first term, this is the second term. Square of the first term plus square of the second term. Since there is a positive, so the middle term is always be positive. Square of the first term plus square of the second term plus twice the product of first and second term. मैं इसको इस तरह याद करता हूँ. a plus b whole square is equals to square of the first term plus square of the second term plus twice the product of the two terms. ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई देम एंड देन यू विल ट्वाइस देम, फिर आप उनको डबल कर दोगे. a minus b whole square is equals to square of the first term plus square of the second term. Since there is a negative sign in between, so your middle term will be negative. This will tell you the sign of the middle term. अगर positive है तो आपका middle term का sign positive होगा. If the sign is negative, then the sign of the middle term will be negative. Square of the first term plus square of the second term minus twice the product of the first and the second term. इसको याद करने का तरीका ऐसा है. ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह में याद कर सकते हो, a square plus b square plus 2ab, जिस तरह आपको याद करना है. एक एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा ताकि ये याद हो. आई हैव अ क्वेश्चन 3x plus 4 होल स्क्वायर ब्रैकेट होल स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई दिस, ये है क्या, व्हाट इज दिस. तो सिंस देयर आर टू टर्म्स, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, एंड देयर इज अ पॉजिटिव साइन इन बिटवीन एंड अ स्क्वायर आउटसाइड द ब्रैकेट. दिस रिजेंबल्स टू द फर्स्ट आइडेंटिटी. पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहले पहचानना पड़ेगा, उसके बाद आइडेंटिटी अप्लाई होगी. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी. क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइन है. दिस इज माय फर्स्ट टर्म जिसका नाम है 3x एंड दिस इज माय सेकंड टर्म जिसका नाम है 4. नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म. दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म विद ब्रैकेट्स. ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है.
आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द एक्सपेंडेड फॉर्म, जो कि बगैर ब्रैकेट के होती है। हमेशा याद रखना, सर ने बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म में देयर आर 3 टर्म्स, फैक्टराइज फॉर्म 2 टर्म्स, एक्सपेंडेड फॉर्म 3 टर्म्स। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? 3x, स्क्वायर ऑफ 3x, 3 स्क्वायर 9, x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर आ गया। देन कम्स द पॉजिटिव साइन। फिर सर ने कहा था स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म है, स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। आपके पास सेकंड टर्म क्या है? यू हैव 4 एज योर सेकंड टर्म, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4। व्हाट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16। देन कम्स द प्लस साइन अगेन। क्यों? क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव साइन बिटवीन द टू टर्म्स, तो आपकी जो लास्ट में मिडिल टर्म आती है वो भी पॉजिटिव ही होगी। इट डजेंट मैटर आप मिडिल टर्म को बीच में लिखते हो, एंड में लिखते हो, इट डजेंट मैटर। 2ab को आप सेकंड प्लेस पे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एट द एंड एज वेल। ठीक है, बस सिर्फ साइन का ख्याल रखना। फिर सर ने कहा था कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू आता है, तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3x मल्टीप्लाई बाय 4, 3x multiplied by 4 will give me 12x. 3x multiplied by 4 will give me 12x, and double of 12x. Double means 12x multiplied by 2. 12x multiplied by 2 will give you 24x. This is the answer of this factorized form. This factorized form has been expanded into, इसको मैंने इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, समटाइम्स वो आपको फैक्टराइज फॉर्म देता है, आपसे एक्सपेंडेड पूछता है, लेकिन कभी कभार वो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म देके भी वापस फैक्टराइज पूछ सकता है, तो यू शुड नो बोथ द थिंग्स। ठीक है, अब इसका रिवर्स करते हैं जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको रब कर देता है। ठीक है, इसको रब कर देता है, हमें नहीं पता कि ये हमारी आइडेंटिटी है कि नहीं है। इसको रब कर दिया मैंने। अब इसको जल्दी से फैक्टराइज फॉर्म में जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। आई हैव दिस क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 24x। ठीक है, 3 टर्म्स है, एंड यू आर आस्क्ड टू फैक्टराइज इट। आपको इसको फैक्टराइज करने का बोला गया है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई मिडिल टर्म। आप बिल्कुल इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि फिर फैक्टर्स बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 16 और 9 हो जाएंगे। तो लेट्स जस्ट ट्राई इट विद द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए ट्राई करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट आई हैव टू चेक द फर्स्ट 2 टर्म्स, आइदर दे आर स्क्वायर और नॉट। मुझे पहले चेक करना पड़ता है कि मेरी फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है वो स्क्वायर है कि नहीं है। तो 9x स्क्वायर इज अ स्क्वायर, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू द फैक्टराइज फॉर्म, ये भी मेरे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द फैक्टराइज फॉर्म। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, क्या is the first term square? Yes, 3x whole square is equals to 9x square. Is 16 किसी का स्क्वायर है? Yes, 4 times square is 16. Now I have to check the middle term. Is the middle term twice the product of the two? Is the middle term twice the product of the two? So first I have written 2, and then what is my first term? 3x, so I will write 3x like this. And what is the second term? The second term is 4, so I will write 4. अब जल्दी से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो, is your answer 24? 2 3 is 6, and then 6 4 is 24. So your answer is coming out to be 24x. This means this is the expanded form of the identity. You have to check these 3 conditions. अगर ये तीनों satisfy हो जाए, this means this is the expanded form. Now you can convert it into the factorized form. And वो क्या है, इसका मेथड क्या है? Just write the first term, sign of the middle term, and the second term, make a bracket, whole square. This is the factorized form of this. इसको अगर तुम मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी करते तब भी यही आंसर आता, लेकिन उसमें फैक्टर्स बनाने में मुश्किल हो जाती, क्योंकि यू हैव टू मल्टीप्लाई 9 and 16. ठीक है, तो समटाइम्स द क्वेश्चन कैन बी फैक्टराइज्ड बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, नॉट ऑल द टाइम, समटाइम्स। तो यू हैव टू चेक दिस, ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इफ यू आर गिवन विद द फैक्टराइज्ड फॉर्म, हाउ कैन यू कन्वर्ट अ फैक्टराइज्ड फॉर्म इनटू एन एक्सपेंडेड फॉर्म। फॉर दैट यू मस्ट रिमेंबर अ फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी में सिर्फ एक डिफरेंस है, इंस्टेड ऑफ अ पॉजिटिव साइन वी हैव अ नेगेटिव साइन, जिसकी वजह से क्या होता है? द साइन ऑफ द मिडिल टर्म, द साइन ऑफ द मिडिल टर्म, ये जो लास्ट टर्म है इसको कहता हूं मैं मिडिल टर्म। द साइन ऑफ द मिडिल टर्म चेंजेस। इफ देयर इज अ पॉजिटिव, द साइन ऑफ द मिडिल टर्म इज पॉजिटिव। इफ देयर इज अ नेगेटिव, द साइन ऑफ द मिडिल टर्म इज नेगेटिव। एक और क्वेश्चन करते हैं।
We have a question x plus 4 whole square. This is the factorized form. We have to convert it into the expanded form. ये factorized form है. क्यों है? Because we have brackets. We have two terms inside the bracket. We have a positive sign and we have a square outside. So this is a identity. ये identity है. कौन सी identity है? Since there is a positive sign, so this is identity number 1. How to expand it? We need a formula. वो formula क्या है? Square of the first term. Square of the first term. The first term is x, so this will be x square plus square of the second term. Our second term is 4, so 4 square will be 16 plus क्यों आया? क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है. If there is a plus in between, sign of the middle term will also be plus. Last term क्या होती है? Twice the product of the two. Twice the product of the two means I have to multiply these two. 4 multiplied by x will give me 4x, and twice of 4x means I have to multiply 4x with 2. So what it will get? It will give me 8x. So this is the expanded form. अब जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसको दोबारा जाना है रिवर्स में. तो इज दिस अ स्क्वायर? यस, दिस इज अ स्क्वायर. ये किसका स्क्वायर है? ये एक्स स्क्वायर है. ठीक है. What about 16? क्या 16 किसी का स्क्वायर है? Yes, 4 का स्क्वायर है. Just write 4 and whole square. What about the last term? Is the last term twice the product of the two? चेक कर लेते हैं. Twice first bracket, second bracket. I just have to check first bracket में क्या आएगा? First term जो कि x है, and then second bracket में second term. 4 times 2 8, 8x आ गया. इसका मतलब है this is an expanded form. You can convert back into the factorized form. For that you just have to write the first term, sign of the middle term, and the second term bracket close whole square. तो तुम्हें दोनों चीजें आनी चाहिए. एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए और उसका रिवर्स भी आना चाहिए फैक्टराइज फॉर्म में. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से. 2x minus 4 होल स्क्वायर. ठीक है, आइडेंटिटी है, बिल्कुल है. कैसे पता चला? टू टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट एंड देयर इज अ स्क्वायर आउटसाइड द ब्रैकेट. साइन कौन सा है? नेगेटिव. इसका मतलब है कि आइडेंटिटी नंबर 2 है. ठीक है, चलो इसको जल्दी से एक्सपेंड करते हैं. एक्सपेंड करने के लिए फॉर्मूला याद रखो. स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म minus twice the product of the two. Since this is second identity, so I have used a minus. What is the first term? The first term is 2x. What is the square of 2x? 2 square is 4. X square is x square. So 4x square plus what is the square of the second term? 4 square means 4 multiplied by 4, that is 16. Since there is a negative sign, so the sign of the middle term will be negative. Twice the product. First we will multiply these two. 4 multiplied by 2x will give me 8x. 4 times 2x is 8x and double it. Multiply by 2. 8x multiplied by 2 will give me 16x. This is the expanded form. ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. लास्ट है बिल्कुल ये. 2x plus 8 होल स्क्वायर. 2x plus 8 होल स्क्वायर आइडेंटिटी है. चेक कर लेते हैं. दो टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, पॉजिटिव साइन है. दिस इज एन आइडेंटिटी. ठीक है, ये आइडेंटिटी है और ये फिर expand होगी according to the formula. The first term is 2x, the second term is 8. So square of the first term 2x square means 4x square plus square of the second term 8 square means 8 multiplied by 8, that is 64. Since there is a positive sign, so positive. Twice the product of the two. Product means first I will multiply these two. 8 multiplied by 2x will give me 16x, and then I have to twice it. I have to double it. Multiply by 2. 16x multiplied by 2 will give me 32x. तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई. ठीक है, रिवर्स करना भी तुम्हें आना चाहिए. एक्सपेंडेड फॉर्म अगर मैं दूं तो उसको रिवर्स करके यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू द फैक्टराइज्ड फॉर्म एज वेल. इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो. सर 32x लाइन पहले 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको फिर हमने डबल कर दिया. 32x कैसे आया? पहले 8 को 2x से मल्टीप्लाई किया. 8 मल्टीप्लाई बाय 2x गिव मी 16x एंड देन डबल मींस मल्टीप्लाई बाय 2. 16x मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32x. फॉर्मूला ये है ना, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू. इफ देयर इज अ पॉजिटिव साइन तो मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव होगा. इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन तो मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव होगा. इट डजंट मैटर कि आप 2ab को पहले लिखते हो या लास्ट में लिखते हो, इससे कोई गलती नहीं होगी. आप 2ab को पहले लिखो, बाद में लिखो, लेकिन साइन गलत नहीं होना चाहिए. इफ पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी है, ऑल द साइन विल बी पॉजिटिव. नेगेटिव वाली आइडेंटिटी है, ओनली द साइन ऑफ द मिडिल टर्म विल बी नेगेटिव.